بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے پچھلے دنوں میں اور زبر اور زر اور پیش کی بات ہو گئی۔ پچھلے کل الف مادہ، یا مادہ، واو مادہ، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی بھی بات ہو گئی۔ آج کا جو سبق ہے وہ بہت آسان ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے چیز جو آپ کو سمجھنا ہے، سب سے پہلے چیز جو آپ کو سمجھنا ہے وہ 6 ہے۔ وہ 6 کیا ہے؟ الف مادہ، یا مادہ، واو مادہ، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش۔ یہ 6 چیز اگر ہے تو نیٹی اودا پڑھو۔ نیکسٹ کیا ہے؟ 2 چیز۔ وہ کیا ہے؟ وہ سکون ہے۔ اور کیا ہے؟ وہ شد ہے۔ اور میں آپ کو بتایا تھا سکون اللہ التائی سیرت اودا پڑھم اور مرائی۔ اور شد اللہ التائی سیرت اودا پڑھم ایرو مرائی۔ ٹھیک ہے نا؟ 6 چیز ہے تو نیٹھی اودا پڑھو۔ سکون و شدہ تو سیرت اودو پڑھو۔ زبر زیر پیش مطلب اور زبر اور زیر اور پیش برے واما اودا پڑھو، برے واما اودا پڑھو۔ یہاں میں آپ کو بتایا تھا کہ 2 چیز اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لین ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لین ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لین ہے۔ لین کیا ہے؟ لین کے معنی ہوتا ہے نرم، نرم، ایزی۔ آج کا سبق ایک دم ایزی ہے، بس صرف 5 منٹ چاہیے۔ بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے، بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے۔ با کے میل زبر اور زبر کے پین خالی الف، زبر کے پین خالی الف، پھر الف مادہ، پھر الف مادہ۔ نیکسٹ، با کے کیل نہیں، با کے میل زبر، زیر کا پن یا سکون، زیر کا پن یا سکون۔ با کے میل زبر، زبر کے پن یا سکون، واو سکون، واو سکون۔ نیکسٹ، با کے میل زبر، زبر کے پن یا سکون۔ اس کو ذرا آپ کو سمجھنا ہے۔ فرسٹ زبر کا پن خالی الف، سیکنڈ زبر کا پن واو سکون، تھرڈ زبر کا پن یا سکون۔ میں آپ کو بتایا تھا زبر کا پن خالی الف، الف مادہ۔ میں آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے
تو سب سے پہلی ملاقات زبر زیر پیش سے ہوگی. اب زبر ہے تو ہمیں کیا چاہیے؟ خالی الف. یہاں زبر کے پن خالی الف نیٹھی اودا پڑھو. یہاں زبر ہے لیکن خالی الف نہیں. خالی الف نہیں تو نیٹھی بھی نہیں. اسی طرح یہاں زبر ہے, زبر کے پن خالی الف الا نیٹھی الا. چونکہ زبر کو کھینچنے کے لیے الف ہی چاہیے. چاول کھانے کو بسکٹ چاہیے, اللہ دال چاہیے. زبر کو کھینچنے کے لیے الف چاہیے. زبر کا پن خالی الف, الف مادہ نیٹھی اودا پڑھو. زبر ہے خالی الف الا تو یہ مادہ نہیں ہے, تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ لین ہے, یہ لین ہے. اسی طریقے با کے میل زبر, زبر کے پن خالی الف الا یا سکون, تو یہ مادہ نہیں ہے, یہ لین ہے. چاول کے ساتھ دال نہیں ہے تو نہیں کھائیں گے, نہیں کھائیں گے. اور دال ہے تو, دال ہے تو چاول کے ساتھ دال ہے تو کھائیں گے. زبر کے ساتھ الف ہے کھینچیں گے, زبر کے ساتھ الف الا تو نیٹھی الا, زبر کے ساتھ الف الا نیٹھی الا. تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم اس کو جلدی پڑھیں گے. بریواگا اودا پڑھو. میں گھر کے اندر ہوں, دروازہ بند ہے, کھڑکی بند ہے, اندر اندھیرا ہے. اب ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ رات ہے یا دن ہے, تو ہم نے فون سے امام صاحب کو پوچھا کہ یہ رات ہے یا دن ہے, تو امام صاحب نے بتایا کہ یہ دن ہے. اس کا مطلب رات ہے؟ رات ہے؟ رات نہیں ہے. جب امام صاحب نے بتایا کہ یہ دن ہے تو یہ رات ہے, اور جب امام بتا کہ رات ہے تو پھر دن نہیں ہے. دو چیز میں سے ایک, یا تو رات یا دن, یا تو نیٹھی اودا پڑھو یا بریواگا اودا پڑھو. زبر کے پن خالی الف نیٹھی اودا پڑھو, زبر کے پن خالی الف الا بریواگا اودا پڑھو, زبر کے پن خالی الف الا بریواگا اودا پڑھو. آئی بس سمجھ میں؟ تو اور زبر کے پن خالی الف پیر الف مادہ, زبر کے پن واو سکون نام واو لین پیر واو لین, زبر کا پن واو سکون پیر واو لین, زبر کا پن یا سکون پیر یا لین, اور یا لین بریواگا اودا پڑھو. با واو زبر باو, با یا زبر بی, باو بی باو بی باو بی باو بی باو بی. ایک بات یاد رکھنا کہ حروف لین زبر سے بنتا ہے, زیر سے نہیں, پیش سے نہیں. اس لیے زبر اور پیش میں کوئی کنفیوز نہیں. لین کس سے بنتا ہے؟ زبر سے.
और अलिफ मद्दा किससे? जबर से। इसलिए अलिफ मद्दा और लीन में थोड़ा कंफ्यूज है। इसलिए थोड़ा इस बात को याद रखना कि जबर के पिन खाली अलिफ, अलिफ मद्दा, जबर के पिन या सुकून, वाव सुकून, वाव लीन, जबर के पिन या सुकून या लीन, ये याद रखेंगे। जबर के पिन खाली अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा, जबर के पिन वाव सुकून दा, वाव लीन, जबर के पिन या सुकून दा, या लीन। बा वाव जबर बौ, बा या जबर बै, बौ बै, या वाव जबर यौ, या जबर यै, यौ यै, नून वाव जबर नौ, नून या जबर नै, नौ नै, ता वाव जबर तौ, ता या जबर थै, तौ थै, सा वाव जबर सौ, सा या जबर सै, सौ सै। इसी तरीके से हम हुरूफ लीन को पढ़ेंगे। अब जरा गौर से समझ लीजिए, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा जबर, खड़ा जेर, उल्टा पेश, 6 चीज है। उनको हम नीटी ओदा पढ़ो। 2 चीज सुकून व शद्दा, शेर तो ओदा पढ़ो, शेर तो ओदा पढ़ो, सुकूनुल्लाह शेर तो ओदा पढ़ो, और मुराय शद्दुल्लाह शेर तो ओदा पढ़ो, एर मुराय। और जबर जेर पेश यानी और जबर और जेर और पेश आई बेरे वागा ओदा पढ़ो, और हुरूफ लीन रेंड 2 बेरे वागा ओदा पढ़ो। अब हम क्या करेंगे? हरकत मोर, हरकत मोर, और हुरूफ लीन रेंड 2, हरकत 3, तमिल में बोलो, हरकत मोर, हुरूफ लीन, हरकत और हुरूफ लीन कुल अंज। अब हम यहाँ 2 नहीं अंज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अंज लिखेंगे, अंज लिखेंगे। अगर ये अंज है तो बिरेवागा ओदा पढ़ो, 6 नीठी ओदा पढ़ो, 2 शेर्थ ओदा पढ़ो, और 5 बस। इसी के जरिए हम कुरान पाक को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा कल मैं आपको सुकून व शद्दा समझाऊंगा। आज मैं आपको लीन समझाया, अब इस लीन को हमें किताब से समझना चाहिए इंशाअल्लाह। सफ़ा नंबर 17 के बीच में देखिए, तख्ती नंबर 4 हुरूफ लीन, नीचे लिखा है हुरूफ लीन रेंड आगुम। नंबर 1 समझाओ। आई बस समझ में, आई बस समझ में। अब नीचे देखिए फास्ट लाइन में बिल्कुल शुरू में देखिए कि हमजा के मेल जबर, जबर के पिन खाली अलिफ इल्ला, तो नीटी इल्ला, नीटी इल्ला। जबर के पिन वाव सुकून, वाव लीन। जबर का पिन खाली अलिफ, अलिफ मद्दा, और यहां जबर के पिन वाव सुकून, वाव लीन, और वाव लीन वागा ओदा पढ़ो। हमजा वाव जबर औ,
حمزہ واو زبر او با واو زبر بو با واو زبر بو تا واو زبر تو ثا واو زبر ثو او بو تو ثو او بو تو ثو او بو تو او بو تو ثو 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 او اس کو ہمیں سمجھنا کم ہے اور یاد کرنا بولنا خوب ہے یہ سبق یہ فین بند کر تھوڑا سا یہ سبق یاد کرنا کم ہے بولنا زیادہ ہے بولنا زیادہ بولیں گے تو زبان پر ایزی ہوتا ہے آ رہی بس سمجھ میں یہ جو آپ میتھ پڑھتے حساب میتھ حساب تو جب ہم بچے تھے تو ہم وہ یاد کرتے کیا ہے ایک 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 دو دو ایک تین تین اور کیا بولتے اس کو ہاں وہی دو ایک دو 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 تین چھ دو چار اب اس کو ہم سمجھے تھے یا یاد کرے تھے اس کو ہم سمجھے نہیں تھے صرف جب بعد میں ضرورت پڑی تو وہ ہمارے لیے کام کی چیز بنی بالکل یہ سبق صرف بولنا ہے تو انشاءاللہ قرآن میں جا کے ایزی ہو جائے آگے آرتے دیکھیے جیم واو زبر جو ہا واو زبر حو خا واو زبر خو جو حو خو جو حو خو جو حو خو جو حو خو جو دال واو زبر دو نیچے ذال واو زبر زو دو 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 بس بس اسی طریقے سے ہم 4 لائن کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ پیج نمبر 18 بھول گئے یہاں بھی نہیں ہے ہاں پیج نمبر 18 یہ کنڑ میں ہے تیلگو میں ہے آپ اپنا دیکھ لو پیج نمبر 18 میں دیکھیے پیج نمبر 18 میں دیکھیے زبر کپن یا سکون یا لین زبر کپن یا سکون یا لین اور یا لین برے واگا اودا پڑھو یہاں غور کیجئے حمزہ کے میل زبر اور زبر کے پین خالی الف اللہ یا سکون تو الف مدہ اللہ یا لین برے واگا اودا حمزہ یا زبر ای با یا زبر بی تا یا زبر تی ثا یا زبر ثی ای بی تی ثی ای بی تی ثی ای بی تی ثی ای بی تی ثی جیم یا زبر جی حا یا زبر حی خا یا زبر خی جی حی خی جی حی خی جی حی خی اسی طریقے سے ہم اس کو بھی خوب پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد نیچے لائن میں دیکھیے لکھا ہوا ہے مشق حرکات حروف مادہ و حروف لین یہاں 11 چیز ہے یہاں کتنے چیز ہے 11 چیز ہے فرسٹ لائن دیکھیے زبر کھڑا زبر
अलिफ मादा मूर जेर खड़ा जेर या मादा मूर मूर आर और या लीन तो कितने हो गए 7 और उसके बाद पेश उल्टा पेश वाव मादा या मादा कुल 11 यानी हिसाब को इस तरह लीजिए और जबर और जेर और पेश मूर अलिफ मादा या मादा वाव मादा मूर खड़ा जबर खड़ा जेर उल्टा पेश मूर 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 और लीन रेंड ये पहले लाइन में वो 11 चीज है यानी सारे चीज ये नीचे 4 लाइन में है इस 4 लाइन को हमें खूब मश्क करना 4 लाइन में से मेल फास्ट लाइन और उसके जो फास्ट कट्टम है उसमें जो पहला एलुत्तई मुदल एलुत्तई हा है क्या है और हा के मेल जबर के पिन खाली अलिफ इल्ला जबर के पिन वाव सुकून पेर वावलीन और वावलीन कैसे बोलेंगे वावलीन नहीं बरेवागा ओदा परब हा वाव जबर हाउ हा वाव जबर हाउ लाम के मेल जबर बरेवागा लाम जबर ला लाम जबर ला हौला अरतीस पहला हरफ सौद के मेल जबर के पिन खाली अलिफ इल्ला नीटी इल्ला बरेवागा चूंकि जबर के पिन वाव सुकून फिर वाउलिन बरेवागा ओदा पढ़ूं सौद वाव जबर सौ सौद वाव जबर सौ बीम के मेल पेशई बरेवागा ओदा पढ़ूं मीम पेश मो फर्स्ट सौद वाव जबर सौ सेकंड फर्स्ट सेकंड सौमु सरते सौमु नेक्स्ट अर्थ पहला हरफ पहला एलुत्तई काफ के मेल जबर के पिन खाली अलिफ इल्ला वाव सुकून मद इल्ला वाउलिन बरेवागा काफ वाव जबर कौ काफ वाव जबर कौ सा के मेल जबर रॉ के मेल जबरई बरेवागा ओदा पढ़ूं सा जबर सा रॉ जबर रॉ सा जबर सा रॉ जबर रॉ कौसरा ये कौसर का लफ्ज अब सुने ये हाउस का नाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हाउस अता फरमाया कल क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ से पानी पिलाएंगे किसको पानी पिलाएंगे पल्ला पट्टी वालों को नहीं जिसके पास आधार होगा आधार या ना आधार जो आपके घर में है सरकार के कहीं भी काम करो आधार चाहिए आधार कब्र में भी आधार होना रब कौन है दीन क्या है नबी कौन है पूछा जाएगा और कल क़यामत के दिन
जब पानी पिलाया जाएगा तो भी आधार चेक होगा। எங்க போனாலும் ஆதார், அதே மாதிரி கபருக்கு போனா ஆதார், உங்களுடைய யார், உங்களுடைய யூதர் யார், உங்களுடைய மாற்றம் என்னன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல ஆதார் தேவைப்படும். लेकिन दुनिया में आधार चेक कैसे होता है कि जो आधार में फोटो वो और जिस आदमी का आधार दोनों का फोटो मिलाया जाता है। ஆதார் எப்படி நம்ம உலகத்துல கண்டுபிடிக்கிறோம்? ஆதார் கார்டுல என்ன போட்டோ இருக்கோ அதே நம்பர் தானா இதா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறோம். यानी आधार कार्ड का चेहरा फेस ஆதார் கார்டுடைய முகம் और आधार वाले का फेस யாரோட கார்டா இருக்கோ அவங்களுடைய முகம் ரெண்டும் ஒண்ணா இருந்தா उसको मैच किया जाता है। அது ரெண்டுத்தையும் இணைக்கப்படுது. कल क़यामत के दिन जब पानी पिलाया जाएगा तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फेस और उम्मत के फेस को मैच करा जाएगा। கியாமத் நாள் அன்னைக்கு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய முகம் ஒரு பக்கமும் யாருக்கு தண்ணி கொண்டு வராங்கள அவங்களுடைய முகம் ஒரு பக்கம் வைக்கப்படும். नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फेस में चेहरे में दाढ़ी थी, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய முகத்துல தாடி இருந்துச்சுன்னா उम्मत के चेहरे में दाढ़ी अवश्यम। உம்மத்துடைய முகத்திலையும் தாடி இருக்கிறது அவசியம். अगर उम्मत के चेहरे में दाढ़ी है तो नबी के चेहरे से मैच करेगा तो पास। நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய முகத்துல தாடி இருக்கு, உம்மத்துடைய முகத்துல தாடி இருக்கு, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய முகத்திலையும் தாடி இருக்குன்னா அந்த நபர் பாஸ். अगर दाढ़ी नहीं तो फेल। அந்த உம்மத்துடைய முகத்துல தாடி இல்லைன்னு சொன்னா फिर तन्नी हाउस इल्ला नहीं मिलेगा। அந்த ஹவுஸ்ல இருக்கிற இடத்துல அவங்க தண்ணி கிடைக்கக்கூடாது. इसलिए चेहरा जरूरी है। அதனால முகம் ரொம்ப அவசியமாக இருக்கு. सिर्फ कुरान नहीं सीखना, चेहरा भी होना। வெறும் குர்ஆன் மட்டும் கத்துக்கூடாது, நம்மளுடைய முகமும் வேணும். नियत करते हैं ना, नबी की जिंदगी हमारे लिए कामयाबी है। நபிசல்லல்லாஹு முழு வாழ்க்கையும் நம்ம வெற்றியாக नबी की मर्जी पर चलना हमारे लिए कामयाबी है। நபிசல்லல்லாஹு விருப்பப்படி நடப்பது நம்மளுக்கு வெற்றி. एक बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े थे, पास में दो बीबी खड़ी थी। நபிசல்லல்லாஹு ஒரு வாட்டி நடந்ததுனால பக்கத்துல அவங்க மனைவியா இருந்தாங்க. एक सहाबी आए नाबीना, நபிசல்லல்லாஹு ஒரு சஹாபி வந்தாங்க. वो दो बीबी वही खड़ी थी। அந்த மனைவியாரும் அங்கேதான் நின்னாங்க. नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ तुम अंदर क्यों नहीं जाते? அப்ப நபிசல்லல்லாஹு கேட்டாங்க, நீங்க ஏன் உள்ள போகல? மனைவி பார்த்து கேட்டாங்க. तो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना है। அப்ப அவங்க மனைவியார் சொன்னாங்க, யா ரசூலல்லாஹ் அதுதான் கண்ணு தெரியாது அப்படின்னா. नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम तो नाबीना नहीं। உங்களுக்கு கண்ணு தெரியுமா தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லி நபிசல்லல்லாஹு கேக்குறாங்க. जिस तरह एक मर्द गैर औरत को नहीं देख सकता, एक औरत भी गैर मर्द को नहीं देख सकती। எப்படி ஒரு ஆண் பெண்ணை பார்க்கக்கூடாதோ அதே மாதிரி தான் பெண்ணும் ஆண் பார்க்கக்கூடாது. ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी है। இது நபிசல்லல்லாஹு விருப்பமா. हम अगर उनकी मर्जी पर चलेंगे तो हमें भी हौज़ कौसर मिलेगा। நாம அவங்களுடைய விருப்பப்படி நடந்தோம்னு சொன்னா நமக்கு ஹவுஸ் கௌசர்ல தண்ணி கிடைக்கும். मस्तूरात को हर वक्त पर्दे में रहना। பெண்கள் எப்பயுமே பர்தாவோட தான் இருக்கும். जब वो घर में है वो तो पर्दे में है, எப்ப அவங்க வீட்டிலே இருப்பாங்க அவங்க பர்தாவோட இருக்காங்க. लेकिन जब घर से बाहर निकलेंगी सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक मुकम्मल ढापा होना चाहिए। வீட்டுல இருந்து வெளியே கிளம்புவாங்களோ தலைமுடியில இருந்து கால் வரைக்கும் அவங்க முழுமையாக மறைச்சிருக்கணும். जिस तरह बॉडी को नहीं देखना, चेहरा भी नहीं देखना, हाथ भी नहीं देखना, फेस भी नहीं देखना, पैर भी नहीं देखना, அவங்களுடைய முகமும் பார்க்கப்படக்கூடாது, அவங்களுடைய உடம்புல எந்த ஒரு பாகமும் பார்க்கப்படக்கூடாது, கையும் பார்க்கப்படக்கூடாது, காலும் பார்க்கப்படக்கூடாது, முழுமையாக மறைச்சிருக்கணும். ये हथेली और दोनों पैर खुला रहे हरज नहीं, लेकिन उसको भी ढांपना। அதாவது கையும் காலும் மறைக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை, ஆனா அதையும் மறைக்கணும். बाज लोग कहते हैं कि चेहरा पर्दा में नहीं है, हम कहते वही असल है। சில பேர் சொல்றாங்க முகத்தை போடணும்னு அவசியம் இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா நாம சொல்றோம் முகத்திலையும் நம்மளோட चेहरा ही से तो पता चलता कि कौन है, முகத்தை இருந்துச்சுன்னா கண்டுபிடிச்சோன்னா அது யாருன்னு சொல்லி और चेहरा ही से पता चलता एज क्या है, முகத்தை வச்சு கண்டுபிடிச்சோன்னா உங்களுடைய வயசு என்னன்னு சொல்லி. ये 18 का है या 81 का है। அவங்களுடைய வயசு என்னவா இருக்கு? 18 मालूम, 18 89 12 வயசாக இருக்கு. और 81 नानी। वो चेहरे से पता चलता कि 89 कौन है और नानी कौन है, முகத்தை வச்சு கண்டுபிடிச்சோன்னா யார் பாட்டி யார் பேத்தின்னு சொல்லி, ये पोतरी कौन है और दादी कौन है। யார் பாட்டி யார் பேத்தின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சோம். ये चेहरे से, चेहरा अहम है, अवश्य हम चेहरा को ढांपना। முகத்தை போடுறது ரொம்ப அவசியமாக இருக்கு. अगर घर के अंदर हम
पर्दे में रहेंगे, घर के बाहर हम पर्दे में रहेंगे, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश होंगे और हमें हौज़ कौसर पिलाएंगे। इसलिए हमारे माँ बहनें नियत करें कि हम पर्दे में ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मर्द हजरत उसको मदद करेंगे, साथ देंगे, बुरखा ख़रीद के देंगे, हमारी माँ बहनें पहनेंगे तो क़यामत के दिन उसका अजर मिलेगा, बदला मिलेगा, हौज़ कौसर मिलेगा। चलिए देखिए आरत ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, काफ ज़बर का, ज़ालिका, ज़ालिका। नेक्स्ट की लाइन फास्ट है हमजा, हमजा के मेल और जबर, जबर के पिन खाली अलिफिल्ला या सुकून, फिर या लीन, फिर या लीन, या लीन नहीं बरे वाका ओ दा पढ़ो हमजा या जबर आई, नून के मेल जबर आई बरे वाका, नून जबर ना आई ना, आई ना, आई ना। आईना का तर्जमा क्या है? यन कहाँ, हाँ एन इल्ला, ये कहाँ, कहाँ बोलो इंगे, इंगे कहाँ, समझो आईना का तर्जमा इंगे, ये अरबी जबान है, ये जबान अरब में चलती है। हम अरब जाएंगे ना, क्या है घूमने जाएंगे हज करने, तो हज के लिए तलबिया होना, और तलबिया मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, तलबिया। और घूमने के लिए क्या होना? आईना होना, आईना। हम जद्दा में उतरेंगे तो लोगों से पूछेंगे आईना मक्का, इंगे मक्का। हम मक्का पहुंचे तो हम पूछेंगे आईना अराफत, इंगे अराफत, इंगे मुज़दलिफा, इंगे मीना। और भूख लगी तो इंगे होटल, भूख लगी तो आईना होटल चलेगा, लेकिन हज नहीं, हज के लिए तलबिया। इंशाल्लाह मैं आपको तलबिया पढ़ाऊंगा। आगे देखिए सौद के मेल जबर, जबर के पिन खाली अलिफिल्ला या सुकून या लीन ब्रेवागा ओ दा पर सौद या जबर सई, सौद या जबर सई। फा के मेल पेश, पेशई ब्रेवागा ओ दा पर फा पेश फू, सैफू, सैफू, सौद पुर, सोई, सोई पुर्रा, सैफू। नेक्स्ट सीन के मेल जबर के पिन या सुकून, फिर या लीन, या लीन नहीं बरे वागा सौद सीन या जबर सई। फा के मेल पेशई, फा पेशफू, सैफू, सैफू। स्किन की तरफ देखिए, फर्स्ट सैफू और नेक्स्ट सैफू, फर्स्ट सैफू सौदपुर, नेक्स्ट सैफू सीन बारी। पढ़ने में फर्क है, पहला वाला सौद वो पूर है, सेकंड सीन वो बारीक है। अगर पूर को बारीक कर दिया तो चाय ठंडी, और अगर बारीक को पूर कर दिया तो शरबत गरम। ठंडी चाय बेकार तप्पू, गरम शरबत तप्पू। सौद को बारीक पढ़ना तप्पू, सीन को पूर पढ़ना तप्पू। क्यों? तर्जमा बदल जाएगा।
फर्स्ट पूर्व सैफ सैफ के माना गर्मी का जमाना समर और सैफ के माना तलवार सैफ के माना पेर सैफुल्लाह अल्लाह का तलवार सैफ तर्जुमा तलवार सैफ तर्जुमा समर गर्मी जमाना अब हम अपने अगर सैफ को बारीक कर दिया तो तलवार बन जाएंगी और सैफ को सैफ पर दिया तो वो तलवार गर्मी का जमाना बन जाएगी फिर वो सही या गलत फिर कुरान भी गलत फिर नमाज भी गलत आई बस समझ में मीम वाव ज़बर मऊ हमजा उल्टा पेश ऊ मऊ ऊ दाल ज़बर दा दाल ज़बर दा उसके बाद जो है ना वो हा है हा के मेल दो नुक्ता वो ता है अब इसको हम हा भी नहीं बोलेंगे ता भी नहीं बोलेंगे इसको हम बोलते गोलता तुम क्या बोलते हो आई बस समझ में ता पेश तू मऊदतु मऊदतु इसी तरीके से हम नीचे का 2 लाइन पढ़ेंगे मैं आपको तलबिया पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब हम हज को जाएंगे तो 2 तरीका या तो हम मक्का होके मदीना से घर या हम मदीना से मक्का होके घर जब हम मदीना को जाएंगे तो ज्यादा ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ेंगे और जब हम मक्का जाएंगे ज्यादा ज्यादा तलबिया पढ़ेंगे इंशाल्लाह बहुत से लोग क्या करते घर से निकलते एयरपोर्ट जाते प्लेन में बैठते जद्दा पहुंच जाते बातें ही करते रहते नहीं जब आप घर से निकलेंगे ना मक्का या मदीना के लिए जो पहला कदम है वही मक्का का है वही मदीना का है यही से तलबिया यही से दरूद शुरू जब आप एयरपोर्ट के करीब होंगे दरूद शरीफ तलबिया ज्यादा जब प्लेन में और ज्यादा जब मक्का मदीना पहुंचेंगे तो और ज्यादा जब आप घर से निकलेंगे प्लेन में बैठेंगे तो मक्का जाना तो फर्स्ट जद्दा में उतरेंगे ये जद्दा एयरपोर्ट है ये देख रहे जद्दा एयरपोर्ट है आई बस समझ में और जब जद्दा से मक्का जाएंगे तो ये गेट नजर आएगा दिन को जाएंगे तो ऐसा रात को ऐसा दिखेगा आई बात समझ में और फिर वहां से जब आप मक्का जाएंगे अच्छा ये मक्का एयरपोर्ट है मदीना एयरपोर्ट है ये भी मदीना एयरपोर्ट है ये भी मदीना एयरपोर्ट है ये मक्का का मस्जिद हराम पूरा ऊपर से पूरा मस्जिद हराम ये भी काबा है ये भी काबा है ये काबा के साइड में नीचे ये जो जगह है ना वो भी काबा के अंदर है
हम चाहते हैं कि काबा खाना काबा में या बैतुल्ला के अंदर नमाज पढ़ना, तो उसके अंदर नमाज पढ़ेंगे तो वो भी काबा के अंदर ही है, वो भी काबा का हिस्सा है। और ये जो नीचे ये मकाम इब्राहिम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर पैर रखकर काबा बनाए थे वो पत्थर वहाँ है। पैर के निशानी भी है। ये लोग गोल होकर नमाज में है। ये काबा खाना काबा का दरवाज़ा है। ये हजर अस्वद है। ये सफ़ा मरवा है। माँ हाजरा अलैहिस्सलाम बेटे के लिए जो जहाँ दौड़ी थी सफ़ा और मरवा का बीच है। ये जो ग्रीन हिस्सा ये वो हिस्सा है जिससे हर मर्द को दौड़ना है। मस्तूरतिल्ला मस्तूरत को नहीं दौड़ना, सिर्फ मर्दों के लिए है। माँ हाजरा दौड़ी थी ना, वो क़यामत तक सब के लिए हो गए। मस्तूरत को छुट्टी। और ये मीना है, ये भी मीना है। ये अराफत है। और ये अराफत मस्जिद में मस्जिद नमरा है। और ये अराफत का पहाड़ है। और ये मुज़दलिफ़ा है। अराफत में 9 तारीख दिन को रहना और मगरिब सूरज गुरूब हो तो वहाँ से निकलना। फिर मुज़दलिफ़ा रात को रहना। फिर सुबह पत्थर के लिए शैतान को पत्थर मारना, फिर कुर्बानी करना, फिर सर मुंडाना और फिर वहाँ जाके फिर तवाफ़ करना, तवाफ़ ज़ियारत, तो हज हो गया। कुर्बानी तवाफ़ ज़ियारत तो हज हो गया। हज के लिए 5 दिन है, 8, 9, 10, 11, 12 जिलहिज्जा। आई बस समझ में। फिर हज हो गया, फिर हज हो गया। अब हम मदीना जाएंगे, मदीना जाएंगे। ये मस्जिद नबवी है, ये गुंबद खजरा है जहाँ हमारे नबी आराम फरमा रहे। ये मुकम्मल मस्जिद नबवी ऊपर से, ये भी मस्जिद नबवी है। ये जो इधर जो मीनार देख रहे हैं ना, ग्रीन, ये फर्स्ट गेट है, गेट नंबर 1। इस बाब का, इस गेट का नाम बाबुस्सलाम। उस बाबुस्सलाम में दाखिल होना, फिर सीधा चलना, फिर सलाम पेश करना, फिर सलाम करना, फिर निकलना। 40 नंबर गेट, 40 नंबर गेट। ये बाबुस्सलाम गेट नंबर 1, बाबुस्सलाम 40 नंबर गेट। ओ बाबुस्सलाम 1 नंबर और 40 नंबर बाबे बकी, जन्नतुल बकी। मस्तूरत का ये रास्ता नहीं है। मस्तूरत को अंदर से उसका इंतज़ाम होता है। हम वहाँ सलाम करेंगे, दरूद पढ़ेंगे और नमाज पढ़ेंगे। इसलिए दरूद शरीफ सही करना, तलबिया सही करना, तो फिर हज इजी होता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جتنے لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا 100 میں سے 90 کو تلبیہ صحیح نہیں. اور 10 آدمی جو صحیح ہے اس کو ترجمہ معلوم نہیں. اس لیے ہمیں ترجمہ بھی معلوم ہونا. لبیک میں حاضر ہوں. میں حاضر ہوں. اللہم لبیک. اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک میں حاضر ہوں. کتنے بار؟ مور بار. تو اللہ پوچھے گا کیا بات ہے پلہ پٹی سے یہاں کیسے آئے؟ تو ہم جواب دیں گے لا شریک لک. آپ کا کوئی شریک نہیں, آپ کا کوئی مثال نہیں, آپ جیسے کوئی نہیں. ان الحمد تمام تعریف والنعمت تمام نعمتیں لک آپ کی ہے. والملک حکومت بھی آپ کی ہے. حمد میں نعمت میں اور حکومت میں. لا شریک لک کوئی شریک نہیں. یہ تلبیہ کا ترجمہ ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ماں غصے میں آ کے اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیتی ہے. پھر دروازہ بند کر دیتی ہے. بچہ دروازہ ٹھوکتا ہے اور ماں کو پکارتا ہے, چلاتا ہے, روتا ہے.
پھر ماں دروازہ کھولتی نہیں کھولتی؟ ہم اس طرح تلبیہ پڑھیں گے نا تو اللہ ہمیں بھی مکہ مدینہ کا دروازہ کھول دیں گے، وہاں جا کے حج کریں گے، عمرہ کریں گے، اور وہاں جا کے قرآن بھی پڑھیں گے۔ بازار سے انگور خرید کے کھانا اور باغ میں جا کے کھانا مزہ، بازار سے انگور خرید کے کھانا اور وہاں جا کے باغ میں جا کے گارڈن میں جا کے، انگور کا جو باغ ہوتا ہے، انگور، سیب معلوم، سیب ایپل، بازار سے ایپل کو خرید کے کھانا اور کشمیر میں باغ میں جا کے کھانا، کس میں مزہ؟ ہے نا؟ جب ہم مکہ جائیں گے، مدینہ جائیں گے، جہاں قرآن اترا تھا وہاں قرآن پڑھیں گے تو کتنا مزہ آئے گا۔ مکہ مدینہ کا سفر کریں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، وہاں جا کے قرآن پڑھیں گے، اس کے لیے ہمیں خوب محنت کرنا ہے اور خوب تلبیہ پڑھنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں بار بار بیت اللہ جانا نصیب فرمائے، نبی علیہ السلام کے روضے کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اب ہم یہ سبق صفحہ نمبر 17 کے نیچے، 17 نہیں 18، صفحہ نمبر 18 کے نیچے جو سبق 4 لائن ہے اس کو